Good evening. Good evening. Good evening. How are you all? Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. Yes. Good evening. Shamprati ma'am, good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Very good. Yes. Indrajit ma'am, how are you? Good evening. Fine, sir. Good evening, sir. Sushma, am I audible to you? Sushma ji? Yes, sir. Yes, sir, you're audible. Okay, okay. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, Deepa ma'am. Deepa ma'am, I think you are the host right now, isn't it? No, sir. Sushma ma'am is not able to make me host. Sushma can't make you host? Sir, as I'm not carrying my laptop. Okay, okay, okay. No problem. I think, do you have proper connection? Because I am a guest right now. So, obviously, you have to allow me. If I get removed due to Yes, sir. So I'm praying that everything goes on well. Okay, okay, let's see. No problem. Some new persons are there. Ambika ma'am, Neeta ma'am. Yes. Yes. Thank you, ma'am. Purnima ma'am, how are you? Sir, I'm good. How are you? I'm also fit and fine. Can you follow? Yes. Huh? Yes. Hello, Gopa ma'am. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Yes. Let everyone join. I'm going to start. Today our main special guest is Shamprati ma'am. Thank you, Shamasa. Thank you very much. एक्चुअली संप्रीति मैम ने मुझे बोलने के लिए बहुत कम ही टाइम दिया है. No sir. If you have the practical aspects, you can take as much time as you can. I will only try to explain the theoretical part so that it can be helpful for the practical. No, obviously. Yes. Let me see. Good evening. Yes. Good evening, Sindhu ma'am. Good evening, sir. Yes. I'm just going to start. Let everyone join. Wait for 2 minutes more. Then I'm going to join. না না লক করা আছে जो नया है वो अपना हम लोगों को अपना नंबर दे सकते हो. हम लोग उसका नाम अपने ग्रुप में डाल देंगे. ठीक है. फॉर फ्यूचर वर्कशॉप एंड वेबिनार रिलेटेड एवरीथिंग. अच्छा. And Shushma, I'm sure that you are having that feedback link. Do you have? Are you having that feedback link? Of if anyone is having that feedback link, kindly share. Not right now. Share it after the webinar or just before completing the webinar, 15 minutes. Okay. So यहाँ पर कुछ नया लोग है जिसको ग्राफोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है शायद. ठीक है. तो मैं क्या करूंगा, मैं बहुत ज्यादा ग्राफोलॉजिकली डीप एनालिसिस में नहीं जाऊंगा. ठीक है. बहुत ज्यादा हैंड राइटिंग एनालिसिस में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा जो दूसरे वेबिनार होता है वो सब कुछ होता है ग्राफोलॉजी के ऊपर डायरेक्टली, टोटली डायरेक्टली होता है. ठीक है. तो आज हम क्या करेंगे, ग्राफोलॉजिकली हम कोरिलेशन करेंगे कोई नया एक साइकोलॉजिकल थ्योरी को. जैसे आप सब लोग जानते हो साइकोलॉजिकल थ्योरी को ना हम ग्राफोलॉजिस्ट लोग जनरली कोरिलेशन नहीं करते. मैंने नहीं देखा. अभी तक मैंने नहीं देखा. पता नहीं आप लोगों ने देखा ये नहीं. तो अब आज हम स्टर्नबर्ग के ट्रायर्किक थ्योरी हम कोरिलेशन करने के लिए कोशिश करेंगे जरूर. So obviously I need all of your cooperation and support. Okay. तो कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे जरूर पूछिएगा. कोई भी क्वेश्चन हो मुझे जरूर क्वेश्चन कीजिएगा. और
If I can't answer you right now due to time problem, obviously contact me personally in my WhatsApp number. I'll be there always for you. Okay? And thanking you all that all of you have joined. I'm so happy for that. And I want Shampriti ma'am to say something about this theory. Then I will talk about it. Okay, thank you, Shampriti. Shampriti ma'am is a very good psychologist in Kolkata. So thank you, ma'am, for present. Sorry to disturb you. Yes. Sushma ma'am, Anupama ma'am wants to get in. So please let her join or something or whatever. Yes, yes. Thank you, sir. Yes, thank you. Thank you. In fact, today is a very nice topic you have selected. I would say it's actually a novel idea. As per Sternberg's that word, novel idea, that which you have selected both with the psychology part and with the graphology. Good evening, everybody. Hope you all are fine. Today we shall discuss about Sternberg's intelligence theory, and it's a very interesting topic. Since it's quite an elaborate topic, I will try to explain as much as possible, both in English and Hindi. So let's begin with a small introduction on Sternberg. He was born on December 8th, 1949 at New Jersey, and he's an American psychologist and also a psychometrician. He is best known for his theory of love, creativity, and intelligence. And one of his major contributions to psychology is the triarchic theory of intelligence. So what is intelligence? How do we define intelligence? Actually, intelligence is the ability to acquire and apply knowledge. Here, Sternberg took a cognitive approach to intelligence. So can you go to the next page, please? Next page, page 2. In 1985, Sternberg developed this triarchic theory, which is a complete theory where human abilities, social and contextual factors are taken into consideration. As I mentioned, his main interest was in cognitive psychology, and that is why he developed this theory. Howard Gardner, another American psychologist, see उन्होंने ये इंटेलिजेंस थ्योरी पार्शियली ली थी, जैसे लाइक म्यूजिकल एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस ही टुक फ्रॉम हार्वर्ड गार्डनर, but other 6 intelligence theory which Gardner had given, he classified into 2 types of intelligence. First is your analytic, we also call it as academic, and second one is practical intelligence. So how do we define our analytical problems? Analytical problems are clearly defined problems and developed by others. ये हमारे एक्सपीरियंस से नहीं जुड़ी होती है. ये ज्यादातर इनका एक ही सही उत्तर होता है. There is one fixed answer, or we come with a particular method only to solve this problem. For example, like we give multiple choice questions in competitive exams. There is only one answer which is right, and there is only a particular method through which we can solve it. Therefore, we can say analytical problems are mainly academic based. Second, what he said was practical problems. Practical प्रॉब्लम्स में पहले आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा, फिर उसे शेप करना होगा एंड दूसरे सोर्सेस से इंफॉर्मेशन गैदर करना होगा, जिससे कि आप एक प्रॉपर सॉल्यूशन पर पहुंच सकें. एंड दिस एंटायर प्रोसेस requires our motivation and also our personal involvement. Next page, yeah. Triarchy, Sternberg's triarchy theory includes 3 intelligence aspects or sub-theories, and it is a complete explanation of intelligence which involves interaction of these sub-theories.
So what is the first one? It is the componential subtheory. इसे हम कभी-कभी घटकीय बुद्धि भी कहते हैं. It is also termed as analytical intelligence, and this type of intelligence is classified into meta-components, performance, and knowledge acquisition components. Second one is our experiential subtheory. This also termed as creative intelligence. इसका मतलब होता है रचनात्मक बुद्धि. Creativity हमारे experience से जुड़ी है, and this type of intelligence behavior is best depicted through a continuation of our experience from novel situation to a very familiar task or a familiar situation. Third one is a contextual subtheory. It is also known as practical intelligence. इसका मतलब है व्यवहारिक बुद्धि. Contextual subtheory is the ability to deal with environment demands encountered on daily basis, which involves three components: adaptation with present environment, selection of better environment, and shaping of the present environment as per our social and cultural context. Yes, the next page. Yeah, now let us come to each subtheory in detail as with graphological representation. So what is first is your componential subtheory or analytical intelligence. Componential means any component that can be broken into pieces. Analysis का मतलब है विश्लेषण करना. किसी चीज को अगर हम टुकड़ों में तोड़कर समझे, अगर किसी मुश्किल चीज को हम डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ा जाए और हर एक पार्ट्स को समझा जाए ताकि हम एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में आ सके. So analytical intelligence is the ability to complete academic and problem solving tasks. In fact, this is the actual definition of traditional intelligence. अब traditionally intelligence को क्या माना जाता है? तो we can say जब कोई बच्चा स्कूल या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर करता है, IQ टेस्ट में अच्छा स्कोर करता है, और ऐसे बच्चे में लॉजिकल स्किल्स काफी अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हैं. और ज्यादातर देखा गया है कि ऐसे स्टूडेंट स्कूल में अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, और इसलिए इन्हें कभी-कभी बुक स्मार्ट भी कहा जाता है और स्कूल स्मार्ट. नेक्स्ट पेज प्लीज सर. So componential subtheory can be divided into three components. First is your meta components, which control, monitor, and evaluate our cognitive process. What does actually meta components do? They are a higher order of executive functions, which means higher level of our cognitive skills used to control our cognitive behavior, such as we do problem solving, we do decision making, we do reasoning, we do planning. So all these things come under meta components. Second is your performance components, which means actual execution of the plan and performing of the task. जिसका मतलब है जो भी प्लान आपने बनाया है उसके मुताबिक एक्शन लेना और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना. The third one, C, is your knowledge acquisition component. जानकारी इकट्ठी करना. It involves learning and gathering of new knowledge during this entire process. I think I'm going very theoretical, so let me give you an example of this, all the three components. Suppose you are writing an exam paper. आपको exam paper लिख रहे हो, तो जब आपको question paper मिलती है, तो आप क्या करते हो? You first think which are the questions you are going to solve, which question you are going to solve first, and how much time you are going to allocate for each of these questions.
So all these things are done by metacognition. Second is formal task. That is, once we start writing the paper, that means we are doing the task. We are writing it. And third one is your knowledge acquisition. That is, लिखने के दौरान हमारे काफी knowledge gather होते हैं. Even we also take our previous knowledge जो हमने classroom में पढ़ा था, जो हमारे syllabus में जो हमने पढ़ा था. So all these comes under your knowledge acquisition components. So अगर summary में बोला जाए तो जो planning से related है that is meta component, जो task से related है that is performance component, and जो ज्ञान से related है that is knowledge acquisition component. So now you please explain this graphology. ओके थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी तरह से आपने समझा दिया, तो थैंक यू सो मच. एंड ग्राफोलॉजिकली अगर हम इन तीनों कंपोनेंट को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले मैं थोड़ा पहले से शुरू करता हूँ, ठीक है. जैसा मैम ने तो बहुत अच्छी तरह से समझा दिया, एंड आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे नया लोग भी है जिसको ग्राफोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आप ना सबसे पहले अच्छा होगा अगर हो सके आपके पास पेन और पेपर है तो मैं कुछ फॉर्मूला दे रहा हूँ, वो लिख लीजिए, वो अच्छा होगा, ठीक है. तो सबसे पहले एक चीज़ देखिए, हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये टोटल थ्योरी होता है हम लोगों के इंटेलिजेंस के ऊपर, कौन कितना इंटेलिजेंसी है, कौन किस तरीका से इंटेलिजेंट हो रहा है, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं. तो थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ इंटेलिजेंसी का मतलब क्या होता है, ये क्यों जरूरत है, इस थ्योरी का भी क्या जरूरत हो रहा है आज अपने प्रेजेंट सिनेरियो में, ठीक है. एक अच्छी तरह से देखिए, अगर मैं कोशिश करता हूँ कुछ काम करने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई बताएगा कि आई एम सो मच इंटेलिजेंट, लेकिन मैं कुछ काम ही नहीं करता हूँ, तो कोई बता सकता है, कैलकुलेट कर सकता है मैं इंटेलिजेंट हूँ या नहीं. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा, isn't it? तो इंटेलिजेंस डिपेंड्स ऑन द टेक्निक्स ऑफ आवर एग्जीक्यूशन, ठीक है. टेक्निक्स, मैं यहाँ पे टेक्निक्स के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसा काम है, सपोज मुझे कहीं पर जाना है, तो अगर मैं 2 घंटे का जर्नी मेरे कार से जा सकता हूँ, मैं अगर उस जर्नी को ले मैं एक रिक्शा पकड़ लिया तो बहुत देर लग जाएगा, तो आई विल नॉट बी कॉल्ड एज इंटेलिजेंट. तो मुझे टेक्निकली वर्क करना पड़ेगा, तो टेक्निकल काम में जो जितना अच्छा होगा दैट पर्सन दैट मस्ट बी इंटेलिजेंट इन दैट. तो अभी हम थोड़ा इसके ऊपर डिटेल में बात करने जा रहे हैं. तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना, हैव यू नोटिस. तो मुझे क्या करना है, मुझे ये राइट की तरफ थोड़ा स्लाइटली, अगर किसी के हैंडराइटिंग वेरी स्लाइटली राइट की तरफ झुका हुआ रहता है तो वो ना अपने दिल की बात इजीली कह सकता है सबको, अंडरस्टूड. तो उसमें नॉलेज ज्यादा मिलता है उसको, ठीक है, उसको हेल्प होता है नॉलेज की वजह से. एंड नॉट ओनली दैट, ये अगर कोई इस तरीके से लेफ्ट वर्ड लिखता है तो लेफ्ट वर्ड लिखने से क्या होगा, लेफ्ट वर्ड लिखने से वो दूसरों की बातें बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो नॉलेज भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है. तो नॉलेज जाने से भी डरेगा उसके ब्रेन, ठीक है, कंट्रैक्टेड हो जाएगा, ब्रेन विल बी जस्ट लाइक ए कंट्रैक्टेड. ओके, नेक्स्ट. अच्छा, नेक्स्ट होगा कनेक्शन के बाद थोड़ा बता दूं. कनेक्शन अगर कोई लिख रहा है CONN, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है. तो कनेक्शन अगर ना रहेगा एंड कनेक्शन अगर इजी रहता है तो उसका होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है. सपोज यहाँ पे देखिए, अगर कोई LITTLE, यहाँ पे देखिए कनेक्शन कैसा हो रहा है, जस्ट लाइक ए यू शेप है ना, यहाँ पे यू शेप वाला कनेक्शन हो रहा है एक एक लेटर के, ठीक है. तो इसका होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है, ये बहुत फ्रेंडली नेचर क्रिएट करता है हम लोगों में. अच्छा, नेक्स्ट होता है किसी का भी आप स्मॉल साइज हैंडराइटिंग, जिसका हैंडराइटिंग जितना छोटा हो उसका कंसेंट्रेशन लेवल उतना ही ज्यादा रहता है. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू. अच्छा, नेक्स्ट
अपर जोन, ये अपर जोन लेटर जिसके बारे में मैं फास्ट बात कर रहा था, जहाँ पे अपर जोन लेटर है, एक बार और देख लीजिए आप। अपर जोन में अगर किसी का ये हुक की जैसा आ रहा है, ये हुक कहते हैं हम, ठीक है। ये अगर लेटर एल, एच, लेटर टी, ये हुक की बात कर रहा हूँ ओनली। ये हुक ना हम लोगों को नेगेटिव इफेक्ट भी देता है, ऑब्वियसली ये स्ट्रेस पैदा करता है, लेकिन हम लोग एनालिटिकल एबिलिटी भी ये देता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, कोई कोई ऐसा लिखता है, ये वी लिखता है इस तरीके से, ये वी हमेशा ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल हो रहा है, तो ये ज्यादा होगा तो एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली। एंड एक और जगह पे बहुत ज्यादा एनालिटिकल एबिलिटी होता है, दैट इज अगर कोई डब्ल्यू लिखता है, ये डब्ल्यू का सेकेंड हम्प जो मैंने लिखा, देखा ये एंगुलर बन गया, it also increase the analytical ability. Understood? Understood? मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ। नेक्स्ट, आप इस तरीका से ये Z वाला लेटर में अगर कोई इस तरीके से देता है तो ये एनालिटिकल एबिलिटी बहुत ज्यादा इंडिकेट करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, कोई हम लोग ये मैकेनिकल के लिखते हैं, इसमें भी एनालिटिकल एबिलिटी आता है, जैसे इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से के लिखता है बहुत लोग, है ना। तो इसमें भी एनालिटिकल एबिलिटी आता है। एंड किसी का भी लोअर जोन मतलब जी, वाई, लेटर पी, लेटर क्यू, ये दिस ऑल शुड बी कंप्लीटेड प्रॉपर्ली, ठीक है, कंप्लीटेड प्रॉपर्ली। अंडरस्टूड। मैं Please show it again, please. हाँ, The lower zone, please. हाँ क्या, Lower zone के लेटर ना ठीक से जरा समझाइए प्लीज। हाँ मैं दिखा देता हूँ आपको। किसी का भी जी ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से अनफिनिश्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जी शुड बी और लोअर जोन शुड बी कंप्लीटेड प्रॉपर्ली, ठीक है, इट शुड बी कंप्लीटेड। Thank you, sir. कंप्लीटेड प्रॉपर्ली। तो ये एनालिटिकल एबिलिटी इंडिकेट करता है। एक और कुछ नेगेटिव बूस्टिंग भी मैं आपको कह देता हूँ जो हम लोगों को डिस्टर्ब करेगा। ये एनालिसिस जितना भी हम लोगों में एनालिटिकल एबिलिटी रह जाए, हम लोग लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ। कुछ इस तरह का लेटर जो होता है, सपोज मैं डब्ल्यू लिख रहा हूँ इस तरीके से, तो ये बीच में जो ये जगह नॉट की जैसा बन रहा है, ये कंफ्यूजन पैदा करेगा। अंडरस्टूड। एंड सपोज एस लिख रहा हूँ, सर रिपीट करेंगे एक बार, ये नॉट क्या, डब्ल्यू, हाँ ये बीच में ये नॉट आ रहा है ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अगर कोई एस लिखता है इस तरीके से, तो यहाँ पे अननेसेसरी एंगल आ रहा है एंड इट इज नॉट गुड, ठीक है, ये अच्छा नहीं है। और अगर कोई लेटर पी लिख रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, ठीक है, ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं कुछ नेगेटिव इफेक्ट देने वाला कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। मैंने देखा था कोई लेटर जेड इस तरीके से कर रहा था, इसमें नॉट आ रहा था। दिस इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर एनालिटिकल पर्सन। और ये मेटा कंपोनेंट वाला जो मैंने कहा अभी। अच्छा, नेक्स्ट हम कहने से पहले मैं समृद्धि मैम को कहूंगा दूसरे टॉपिक के बारे में कुछ कहने के लिए, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है। सर एल में भी लूप आता है, वो भी नहीं होना चाहिए ना सर? देन किसमें कैपिटल एल कोई लूप बना के करते हैं ना ऐसे नीचे, जैसे इस तरीके से। हाँ यस। मुझे ऐसा लगता है नहीं होगे तो ही अच्छा है, तो ही बेहतर है। कहीं पर एक्स्ट्रा लूप देने का क्या जरूरत है, अगर जरूरत विच इज नॉट नीडेड, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, नेक्स्ट यस प्लीज
Shampriti ma'am. Yeah, please, sir, I'm just share sharing this. the screen. Yeah. I'm just sharing. Thank you, sir. It was really helpful, the analytical part really, because it can help in our, I will say, in our daily judgment or assessment for the students and also for adults. Is it visible? Yes, sir. So the second theory, what Sternberg मैं बहुत लोगों को क्वेश्चन हो सकता है कुछ भी बहुत ज़्यादा मैं क्वेश्चन आंसर आज के पास टाइम बहुत कम है इसलिए नहीं पा रहा हूँ शायद अगर प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा मुझे मैसेज कर दीजिएगा आई विल ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड यू ठीक है किसी का भी कुछ भी क्वेश्चन हो ऑब्वियसली आई मस्ट रिस्पॉन्ड यू थैंक यू सो मच यस समृद्धि मैम Yes. So the next theory which Sternberg had given was experiential subtheory or creative intelligence. So it's not experimental, which we often confuse. It is actually experiential, which comes from our experience. So what is creativity? Creativity का मतलब है कुछ नया बनाना और creativity हमारे experience से ही जुड़ी है. And हर लाइफ के हर डोमेन से है लाइक इट कैन बी म्यूजिक इट कैन बी स्पोर्ट्स एनीथिंग तो जिन लोगों में क्रिएटिव इंटेलिजेंस ज्यादा होती है तो चांसेस है कि कभी कभी कुछ चीजों के ये गलत जवाब भी देते हैं क्योंकि दूसरे के कंपैरिजन लाइक विद स्पेशली विद एनालिटिकल इंटेलिजेंट पीपल कुछ लोगों को ये गिव अ डिफरेंट काइंड ऑफ उनका डिफरेंट नजरिया होता है they don't have that same analytical view जिसका which had that mention is that it has only one answer just like those MCQ questions so it can vary so according to Sternberg a creative intelligent person can process any novel or new approach efficiently while using his past experiences in solving a new problem. So I split his experience in two parts. First is your novel situation experience. Novel situation मतलब जब कोई अनफेमिलियर और अननोन सिचुएशन आपके सामने हो तो आप कैसे सॉल्व उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो विद योर new and different ideas. Next is your PS automation, मतलब स्वचालन. हमारे जीवन में कुछ डेली रूटीन टास्क होते हैं which we perform every day and उनका ज्यादा कोई एफर्ट या एनर्जी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें. Let me give you an example. For example, if you drive every day to your office, so while driving, you can parallelly do something else. Like mentally, you can think of a business plan, or somebody if sitting next to you, you can talk about various things and come to a decision. So that is parallelly we are driving, and also our mental process is going on. So what did Sternberg say? They are actually two extremes. One side is your novelty, that is nayapan, with unfamiliar situation, and another is your opposite is your automation, yani koi familiar situation. And actually, between these two extremes, our intelligence is best demonstrated. The way we handle a new approach and what we do with our routine task parallelly with something else. That is main part with the creative, intelligent people. We can judge how creative they are. Sir, your graphological part. Thank you so much. ओके सो हम थोड़ा प्रैक्टिकली इसको ले आते हैं मैम ने तो बहुत अच्छी तरह से समझा दिया थैंक यू मैम एंड मैं थोड़ा क्रिएटिविटी के ऊपर बात करूंगा Could you please mute yourself? हाँ म्यूट सबको म्यूट कर दे तो सबको इजी हो जाएगा अच्छा थैंक यू
तो हम लोग क्रिएटिविटी के ऊपर थोड़ा बात करते हैं आज, ठीक है। क्रिएटिविटी एक्चुअली चीज क्या होता है, कोई बता सकते हैं? कोई भी? मैं जस्ट एक माय पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा, उसके बाद आप कहना कुछ क्रिएटिविटी के ऊपर। सपोज 2013 में आई थिंक मैंने एज ए HR मैनेजर मैंने एक कंपनी में ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे R&D, मैं तो HR था, एक कॉम्पिटेंसी मैपिंग कर रहा था मैं, जहाँ पे हम लोग किसी का भी क्रिएटिविटी कैसा होना चाहिए उसके ऊपर कुछ कर रहा था, कुछ जो एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय रिटेंशन पॉलिसी के ऊपर। तो वहाँ पे मैंने देखा जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस सेक्टर पे मैंने गया, तो वहाँ पे क्रिएटिविटी का मैंने एक बहुत सारा एट्रीब्यूट मैंने लिखा, क्रिएटिविटी कैसा होना चाहिए, क्या क्या इनोवेशन होना चाहिए, मैंने बहुत कुछ लिख के गया क्योंकि आई एम ए न्यू HR मैनेजर, सो आई हैव टू शो माय एक्सपर्टाइज एट दैट प्लेस। तो ऑब्वियसली बहुत कुछ मैंने लिख के गया, एंड उधर जब गया तब वहाँ के जो ऑफिसर थे वो मुझे एक ही बात बोला कि अगर आप क्रिएटिविटी के बारे में जानना चाहते हो तो आपने तो पहले से ही खुद लिख के आ चुके हो, उसमें क्रिएटिव कैसे हम दिख पाएंगे? क्रिएटिव तो वही है जो मेरे दिमाग से आएगा, यहाँ पे आपने खुद कह दिया, उसमें क्रिएटिविटी कैसे आ सकता है? So creativity is totally, तो मैंने समझा yes I was wrong. So creativity is totally, which is totally new, and creativity can be anything. A creative person can do anything wrong also. ठीक है? A creative person not always be productive, not always be right. ठीक है? वो गलत भी कर सकता है, ठीक है? And वो गलत करता है, and लेकिन वो अपने दिमाग से करता है. That is why the person is creative. Understood? Which is unusual. I think unusual कोई भी चीज को हम creative जो अपने दिमाग से करते हैं, मैं दूसरों के बात ना समझ के अपने हिसाब से कर रहा हूँ, that is creativity. तो इसमें क्या आता है, ये नोवेल सिचुएशन। स्टर्नबर्ग ने हम लोगों को दो चीज दिया है, एक होता है नोवेल सिचुएशन एंड ऑटोमेशन। तो नोवेल सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, जो ऐसा एक्सपीरियंस हम लोग कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं किया मैंने, ठीक है। लेकिन ये हम हैंडराइटिंग से कैसे हम कर सकते हैं, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए एक सेकंड। I'm just sharing the screen. And those person who is totally new today, please share your phone number. I will be there always. And कुछ भी क्वेश्चन हो तो मैं अपने ग्रुप में उसका नंबर दे दूंगा, ठीक है। एक सेकंड, I'm just sharing the screen. তখন সুদ্ধারে যাবো, সুদ্ধারে যাও না না, তখন তখন তো আমি দিয়ে দিচ্ছি, আগের 15 টাকা বাকি ছিল। थैंक यू अनुपमा मैम, आपने आया, थैंक यू। मैंने आपको कह रहा था आने के लिए। Okay, is it visible? The blank page? Yes, sir. Yes, sir. আগের দিনের 15 পাবে, আজকে তো যেটা আছে সেটা সবাই যাত্রাটা দিয়ে দেবে। Thank you, Tamal, for inviting me. थैंक यू मैम। मैंने आपको कह रहा था, यू आर तो बहुत ज्यादा सीनियर हो, इसलिए मैं आपको कह रहा था, तो थैंक यू सो मच। एंड आपने मुझे परमिशन दे ये करने के लिए, एक्चुअली ये साइकोलॉजिकली कोरिलेशन, अरे नहीं तमाल, साइकोलॉजिकली कोरिलेशन तो मैंने नहीं देखा, ज्यादा कभी नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं कौन होती हूँ परमिशन देने वाली? इट्स योर प्लेटफॉर्म, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। यस, यू मोटिवेटेड, दैट्स एनफ मैम। थैंक यू तमाल। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्रिएटिविटी का ये नोबेलिटी एंड ऑटोमेशन, इसके ऊपर हम थोड़ा बताएंगे। अगर हम किसी का भी सपोज लेटर आई देख लीजिए, अगर कोई आई लिखता है, कोई इस तरह के डॉट देता है, कभी यहाँ पे देता है, कभी इस तरह से डॉट दे देते हैं। तो आई का डॉट, अगर किसी का आई का डॉट अगर ये राउंड सर्कुलर वाला होता है, ठीक है, इसमें क्रिएटिविटी ज्यादा आते हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत क्रिएटिव होता है। एंड कभी कभी हम देख सकते हैं लेटर आर में भी क्रिएटिविटी आते हैं, आर में अगर ये नॉट आ जाते हैं तो, ठीक है। नॉट जनरली कहीं पर नॉट बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन लेटर आर में आते हैं तो दैट इज गिविंग यू पॉजिटिव इफेक्ट। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? एंड लेकिन ये नॉट, ये लेटर एम में नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए,
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कोई इसको हम ग्राफोलॉजिकल लैंग्वेज में शाम गार्लैंड कहते हैं। ये लोग भी क्रिएटिव होते हैं। ये लोग अगर जो एम लिखता है इस तरीके से डब्ल्यू के जैसा लगता है, एम और यू लिखता है, सॉरी एन लिखता है यू के हिसाब से, यू के जैसा मतलब ऐसे होता है, ऐसे होता है यू। तो एम एन वो डब्ल्यू एंड यू हो जाते हैं, उसका एम को डब्ल्यू हो जाते हैं, एन हो जाते हैं, यू की जैसा लगता है दूर से देखते हैं। अगर जो लिखता नहीं है उसको कभी नहीं समझ में आएगा, जो लिखता है वो इजीली जानते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है उसका इफेक्ट, लेकिन मैं इस थ्योरी के ऊपर डिपेंड करके बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्रिएटिविटी, इसमें भी आप देख सकते हो लेटर एम जो यहाँ से शुरू कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक एंगल होता है, एक एंगल। ठीक है, ये एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिविटी, ये एंगल। ठीक है, एंगल लेटर एच में भी हो सकता है। ये एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिविटी। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अच्छा, एक और चीज में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी आते हैं कहाँ पे पता है आपको? सबसे ज्यादा आते हैं डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग में। डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग जिसका कनेक्शन ज्यादा नहीं है हैंडराइटिंग में। ठीक है, सपोज आप देखिए नहीं तो কাজ চলছে দিচ্ছে এটা আলাদা রাখো না, একটা প্যাকেটে রেখে দাও আলাদা। यहाँ पे देखिए कनेक्शन ज्यादा नहीं दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे कनेक्शन कम हो रहा है। ठीक है, ये डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग। एक और चीज मैं दिखा देता हूँ आपको। ये डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग, ये कहाँ पे कनेक्शन एक्चुअली जरूरी होता है। सपोज आप लेटर ए को कनेक्ट करना चाहते हो दूसरे लेटर से, सपोज लेटर एल ए, तो एल ए को कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे आना पड़ता है ना। लेटर एल ए को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आना पड़ रहा है आपको, है ना। तो लेटर ए एक्चुअली शुरू कहाँ से होता है? इस एरिया से। ये एरिया को और भी अच्छी तरीके से देख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज लेटर ए शुरू हो रहा है इस एरिया से, इस एरिया से। ठीक है, तो इस एरिया से अगर लेटर ए शुरू हो रहा है, ये हो गया आपका ये हाफ पोर्शन, ये हाफ पोर्शन। अगर लेटर ए अगर किसी का इधर से शुरू होता है, ये मतलब ये हाफ पोर्शन के इधर से, इधर से, तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो लेटर एल के साथ, है ना। लेटर एल के साथ कभी कभी आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई लेटर एल के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। आपको लेटर एल ए से बीच में से घुसाना पड़ रहा है और इधर से भी आप आना पड़ रहा है आपको, isn't it? So this is not good. This is not good. I am telling you not to do it. Understood? And some unusual letter. कोई ना हम लोग कभी-कभी अनयूजुअल लेटर लिखते हैं। अनयूजुअल लेटर का मतलब क्या होता है? जो हम लोगों को सिखाया नहीं, मेरा टीचर मुझे नहीं सिखाया वो लेटर। सपोज मैं लेटर ए लिख रहा हूँ, कैपिटल ए लिख रहा हूँ इस तरीके से, ये तो मुझे मेरे टीचर ने नहीं सिखाया मुझे, है ना। सपोज मैं कैपिटल एच लिख रहा हूँ इस तरीके से, तो ये तो मेरे टीचर ने नहीं सिखाया। तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव जो भी इफेक्ट आ सकता है आने दीजिए, लेकिन ये क्रिएटिविटी इंडिकेट करता है। ठीक है, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? एंड कुछ नेगेटिव बूस्टिंग के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, जो नेगेटिव डिस्टर्ब कर सकता है हम लोगों को। अच्छा, सुषमा जी और दिव्या जी या लक्ष्मी श्री, आप अगर हो आप ना वो फीडबैक लिंक यहाँ पे शेयर कर सकते हो। जिसको सर्टिफिकेट चाहिए उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मुझे कुछ टाइम लगेगा, 5 to 10 days लगेगा सर्टिफिकेट देने में। मैं रेडी करके ऑब्वियसली आई विल प्रोवाइड द सर्टिफिकेट ऑल ऑफ यू, दोज हु विल सबमिट द फीडबैक फॉर्म। ओके, अच्छा कुछ नेगेटिव। सर ये ए और एच आपने बोला कि क्रिएटिविटी है, और ये पॉजिटिव सेंस में रहेगी? पॉजिटिव होता है क्रिएटिविटी
एंड नेगेटिव भी हो सकता है, जो नॉट एक्स्ट्रा आ रहा है उसके लिए कुछ नेगेटिव भी आ सकता है, वो हम बाद में बात करेंगे। और कुछ नेगेटिविटी मैं अभी कह देता हूँ जो डायरेक्टली क्रिएटिविटी को अफेक्ट करता है। देखिए, ये डायरेक्टली क्रिएटिव पर्सन को कंफ्यूज कर सकता है। लेटर एम में ये लूप, ये नॉट डायरेक्टली कंफ्यूजन बढ़ा सकता है। कोई इस तरीके से लिखता है, ये सेकंड में नॉट होता है, सेकंड में, ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। नेक्स्ट, कभी कभी इस तरीके से लिख रहा है, तो यहाँ पे एक क्लैश हो रहा है, एक लाइन के ऊपर से दूसरा लाइन जा रहा है, ये भी डिस्टर्ब करेगा इस तरीके से। या इसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं, सॉरी इसको हम गैप कह रहे हैं। इधर पे देखिए गैप आ गया इस एरिया पे, हैव यू नोटिस, इस एरिया पे गैप आ गया एंड इस एरिया पे क्लैश आ गया। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अच्छा, एंड एक और चीज मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें बहुत लोगों को, बहुत सारे ग्राफोलॉजिस्ट को भी मैंने देखा है कंफ्यूजन रहता है। सपोज मेरे हैंड को देखिए, मैं अभी जो लेटर दिखा रहा हूँ, हैंड राइटिंग मूवमेंट को देखिए अच्छी तरीके से। मैं एम लिख रहा हूँ ऊपर से नीचे, ये भी ऊपर से नीचे, ये भी ऊपर से नीचे, ये भी ऊपर से नीचे, ठीक है। तो ये जब मैंने किया, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक एंगल बन गया, यहाँ पे एक एंगल बन गया, यहाँ पे भी एक एंगल बन गया। लेकिन आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये एंगल ना कभी भी ओरिजिनल एंगल नहीं है, क्योंकि मैंने अपना पेन उठा लिया है इधर से। हैव यू नोटिस, मैं अपना पेन उठा है इधर पर, ठीक है। मैं एंगल अगर एल कहूंगा, जो एंगल में इधर पे देखिए मैं अपना नहीं उठा रहा, इधर पे देखिए पेन नहीं उठा, इसको आप एंगल बता सकते हो। तो एंगल का कैरेक्टर यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, लेकिन इधर पे एंगल नहीं आएगा। तो इधर पे डोंट गेट कंफ्यूज। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा ये हो गया आपका क्रिएटिविटी वाला पोर्शन। अभी समृद्धि मैम आपको थोड़ा कॉन्टेक्सचुअल और प्रैक्टिकल सब थ्योरी के ऊपर थोड़ा बता देगा। समृद्धि मैम प्लीज। Yes, sir. Thank you, sir. So the third theory, sub-theory which Sternberg had given was contextual sub-theory or practical intelligence. Practical intelligence हमारे day-to-day life में apply किया जाता है. Practical intelligence deals with a mental ability involved in attaining fit to context. A practical intelligent person can create a perfect or ideal fit between himself and his environment. They have the ability to adapt, select, and also modify the environment according to their needs. इसका मतलब है हमारे environment के जो demands होते हैं, उसके अनुसार को adopt कर लेना, context के हिसाब से खुद को change कर लेना, और कभी-कभी एनवायरनमेंट को भी अपने फेवर में बना लेना। और इसी वजह से प्रैक्टिकल इंटेलिजेंट पीपल के सक्सेस रेट बाकी लोगों से ज्यादा होती है। जिन लोगों में इंटेलिजेंस ज्यादा होती है उन्हें हम स्ट्रीट स्मार्ट या बिजनेस सेंस भी कहते हैं। So next page. So the three processes of practical intelligence are adaptation, as defined by Sternberg, occurs when one makes a change within oneself in order to better adjust to one's surrounding. For example, when temperature drops, we wear warm clothes and adapt ourselves with the environment. Another example, suppose आपको कोई नई जॉब मिली है, वहाँ आप न्यू स्किल्स acquire करते हो, लर्न करते हो, वहाँ के रूल्स अडॉप्ट करते हो, so that you can best suit yourself with that new environment. Next, B is shaping. Sternberg defined shaping occurs when one changes the environment to better suit one's needs. Environment के साथ जब हम environment के साथ अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं,
तो तब हम एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं. For example, like in an online class, a teacher is teaching in an online class, and if all the students are in unmute mode and they start speaking, so what will happen? A total chaos. So a teacher fixes a rule to all the students to keep themselves in mute mode, and whenever they have any question, they can unmute themselves and ask it, so that the lesson is taught without much disruption. Third one is your selection. जब हम environment के साथ adapt नहीं कर सकते हैं और environment को change भी नहीं कर सकते हैं, and हमें बहुत suffocated feel होती है. So at that time, we resort to selection of another new environment. For example, you leave your previous job and shift to another country to join another job, so that you can be comfortable in that new environment. So the three aspects of practical intelligence is adaptation, shaping, and selection. Over to Thomas. थैंक यू मैम, थैंक यू. अच्छा, ये प्रैक्टिकलिटी हम हैंडराइटिंग से कैसे डिनोट कर सकते हैं? प्रैक्टिकलिटी ये होता क्या है? प्रैक्टिकलिटी ये होता क्या है? स्टर्नबर्ग, अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग ने बहुत इजीली ये कह दिया कि ये प्रैक्टिकलिटी ये चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं. एंड ओरिजिनली क्रिटिसाइज तो बहुत सारे हम इस कोई भी थ्योरी का तो क्रिटिसिज्म रहता ही है, ठीक है, बहुत सारे एंगल से हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं, उसके नजरिए से अगर हम देखते हैं, तो इसको हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत इजीली ये तीन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है. एक होता है एडॉप्शन. जो एडॉप्शन इतना इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिकलिटी में, मतलब ये तो कहीं पर जरूरत होता है. हस्बैंड वाइफ में डिस्टर्ब हो रहा है, रिलेशनशिप इशू चल रहा है, तो उसमें भी तो आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा. किसी का नेचर, वो लड़की अपने घर से आ रही है टोटली सब कुछ छोड़ के, उसका तो कैरेक्टर अलग है, उसका एनवायरनमेंट अलग है, तो बोथ पर्सन को वहाँ पे एडजस्ट करना होता है. अंडरस्टूड? तो इसमें क्या आता है, इसमें लोगों को एडेप्टेबिलिटी चाहिए. एडेप्टेबिलिटी एंड प्रैक्टिकल लाइफ में जाने के लिए शेपिंग चाहिए. शेपिंग का मतलब क्या होता है? जो सूट करता है, जो एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट को मैं सूट कर रहा हूँ. एंड लास्ट में होता है सिलेक्शन. सिलेक्शन का मतलब होता है टोटली हम लोग एक नया ऑल्टरनेटिव को हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं. अंडरस्टूड? तो इन तीन चीजों को अगर हम ग्राफोलॉजिकली मतलब हैंडराइटिंग में कोरिलेशन करते हैं, तो क्या मिलता है हैंडराइटिंग का? तो सबसे ज्यादा मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड. ये प्रैक्टिकलिटी हम इजीली देख सकते हैं. कहाँ से प्रैक्टिकलिटी हम देख सकते हैं? देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कुछ लेटर्स एंड कुछ इंडिकेशन. अगर किसी का हैंडराइटिंग, किसी का भी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा स्मॉल हो, तो वो सबसे मिलके खुल मिल के बात नहीं कर पाएगा, उसका कंसंट्रेशन लेवल एक ही जगह पे अटका रहेगा, ठीक है. और किसी का हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा लार्ज हो गया, तो वो तो एक्सट्रोवर्ट बन जाएगा, ठीक है, टू मच हो जाएगा, ठीक है. तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगा? तो एक हो जाएगा बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट, एक हो जाएगा बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट, ठीक है. तो हम एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट को बीच में आना है, तो एम्बिवर्ट होना है, ठीक है. तो किसी का भी हैंडराइटिंग अगर टोटल जो ओवल्स रहते हैं हैंडराइटिंग में, जो 7 ओवल्स है, ठीक है, ये जो ओवल्स देखिए आप, लेटर ए, ओ, डी, जी, बी, पी, क्यू, ये 7 ओवल्स होता है. ये 7 ओवल्स को हम लोग, इसका साइज हमेशा मीडियम होना चाहिए, मीडियम, ठीक है. मीडियम एक मेजरमेंट होता है, जो नया है उसके लिए मेजरमेंट नहीं आएगा, तो मैं बस इतना ही कहूँगा, नॉर्मल रख दीजिए, बहुत ज्यादा छोटा ना कीजिए, बहुत ज्यादा बड़ा ना कीजिए उसका हैंडराइटिंग का साइज, तो उसका एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है. मीडियम साइज हैंडराइटिंग. इसके बाद आता है किसी का भी, जो मैंने कुछ देर पहले आपको स्लांट की बात किया, थोड़ा सा राइट वर्ड के झुकाना चाहिए, थोड़ा सा राइट साइड में झुकाना चाहिए. 100% इस तरीका से नहीं होना चाहिए. 100% ये 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, और ये बैकवर्ड में नहीं जाना चाहिए, ठीक है.
आना चाहिए। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो नेक्स्ट होता है वर्ड स्पेस। दोनों वर्ड में अगर गैप बहुत ज्यादा आ जाते तो वो भी इंट्रोवर्ट की तरह बन जाएगा, और बहुत कम हो जाता है तो वो एक्सट्रोवर्ट बनने का चांसेस रहेगा। तो वर्ड स्पेस भी हम लोगों को मैटर करेगा। वर्ड स्पेस मीडियम होना चाहिए। एंड वर्ड स्पेस एंड कुछ लाइट एडेप्टिबिलिटी एक और जगह पे आते हैं, मीडियम प्रेशर लोग बहुत ज्यादा एडप्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको कह देता हूँ, बहुत अंडरस्टैंड करना बहुत इजीली एंड माइन्यूटली देखना, ये एडप्ट द डिफरेंस बिटवीन एडेप्टेबिलिटी एंड एडजस्टेबिलिटी। ठीक है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। मैं अपने रिलेशनशिप में अगर अपने अपोजिट जेंडर के साथ एडजस्ट कर लेता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम आ जाएगा उसमें, लेकिन उसके साथ मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ तो उसमें मुझे हैप्पीनेस मिलेगा। अंडरस्टूड? एडजस्टमेंट हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एडजस्टमेंट मतलब कॉम्प्रोमाइज, ठीक है? लेकिन अगर हम खुशी खुशी अडॉप्ट कर सकते हैं तो इजीली हम हैप्पीनेस मिल सकता है हम लोगों को। तो सबसे पहले ये जो मीडियम प्रेशर वाला हैंडराइटिंग होता है, मतलब बहुत ज्यादा जोर प्रेस के जो डालते हैं उससे कम प्रेशर वाला हैंडराइटिंग जो होता है, दैट इंडिकेट गुड एडेप्टेबिलिटी। लेकिन गुड एडजस्टमेंट किसको हम कहते हैं? जो लाइट प्रेशर करते हैं उसके बाद एडजस्ट होने का चांसेस ज्यादा रहता है उसको, क्योंकि उसको पता है कि मैं इनसे नहीं जीत पाऊंगा तो मुझे कॉम्प्रोमाइज करना है। ठीक है, तो मेरा प्रेशर बहुत हल्का हो जाएगा। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट कम हो जाएगा वहां पे। ठीक है, एंड एक और चीज होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। कभी कभी आप देखना लेटर जी कोई इस तरीके से कर लेता है ना? आपने देखा है कोई? मैंने कई बार देखा है। बहुत इजीली ये लोग भी ना बहुत इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। लेटर 8 की तरह जी लिखता है, बहुत इजीली ये एडजस्ट कर सकता है। एंड प्रैक्टिकल नेचर में ना अगर कोई मतलब मैं लूप की बात अभी कर रहा था थोड़ी देर पहले, मतलब जिसका हैंडराइटिंग में लूप ज्यादा हो उसका होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ता है, मैंने कहा। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा होल्डिंग। कोई इस तरह कैसे लेटर H लिख रहा है तो इसमें होल्डिंग कैपेसिटी आ जाएगा, एंड कोई लेटर H इस तरीके से लिख रहा है तो इसमें प्रैक्टिकलिटी ज्यादा आएगा। अंडरस्टूड? क्यों ज्यादा आएगा? क्योंकि ये लिखने से टाइम ज्यादा लगता है। एक लाइन से इस तरीके से ऊपर जाने से, नीचे आने से, फिर ऐसा करने से टाइम ज्यादा लगता है। एंड मैं अगर इजीली इस तरीके से करूंगा तो टाइम कम हो जाएगा। तो ये प्रिंट हैंडराइटिंग में प्रैक्टिकलिटी ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपना और ऑल हैंडराइटिंग ऐसा ही कर दो। ठीक है, ऐसा मत करो। नॉर्मल जैसा है ऐसा रहने दो, उसके बाद जो जहाँ पे जरूरत है उतना ही चेंज कर सकते हो। तो ऑब्वियसली कोई भी किसी का भी एडवाइस लेके, कोई भी ग्राफिस्ट का एडवाइस लेके। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट और कुछ नेगेटिव इफेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रैक्टिकल लाइफ में जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, वो होता है, यहाँ पे देखिए, अगर किसी का ऑल राइटिंग आर बिकमिंग रिट्रेस, जिस लाइन से ऊपर जा रहा है उसी लाइन से नीचे आ रहा है, LITT LE, यहाँ पे देखिए। उसके बाद सपोज लेटर B लिख रहा हूँ इस तरीके से, लेटर D लिख रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, लेटर F लिख रहा हूँ इस तरीके से, मतलब मेरा और राइटिंग और बिकमिंग स्क्वीज्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा स्क्वीज्ड हो रहा है, एंड लूप नहीं हो रहा है, एंड प्रिंट भी नहीं हो रहा है। मैं दोनों लाइन खींच रहा हूँ लेकिन गैप नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिट्रेस। ऑल लेटर्स आर बिकमिंग रिट्रेस, तो प्रैक्टिकलिटी उसमें कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? वो अपने हेल्थ में भी बहुत सारा इश्यूज आ सकता है उसका। एंड कुछ कभी कभी आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चों में, कभी कभी हम लोग देखते हैं स्कूल में, जब मैं कुछ जाता हूँ, देखता हूँ अभी भी कोई कन्वेंशनल हैंडराइटिंग करता है। कन्वेंशनल हैंडराइटिंग मतलब क्या होता है? सपोज कोई ए लिख रहा है इस तरीके से जो बुक में ए रहता है ना, बुक का ए ऐसा रहता है। कन्वेंशनल अगर बुक का जी ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये कन्वेंशनल। सपोज कैपिटल लेटर E,
इस तरीके से दे रहा है कोई बच्चा, तो इसका प्रैक्टिकलिटी कम हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा बुकिश हो जाएगा। दिस इज नॉट गुड। ये आपको देखने में बहुत अच्छा होता है, कभी कभी आपको लगेगा देखने में बहुत अच्छा अच्छा हैंडराइटिंग मिल जाएगा, लेकिन वो कन्वेंशनल अगर हो तो उसका बुकिश नॉलेज भरा हुआ रहेगा, वो प्रैक्टिकल में अच्छा नहीं रहेगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? एंड ये कन्वेंशनल हैंडराइटिंग में एक और चीज रहता है, दैट इज कभी कभी मैंने देखा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? सपोज मैं पी लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए गैप आ गया, ऊपर में गैप, नीचे में भी गैप, ठीक है। लेटर एच लिख रहा हूँ, यहाँ पे गैप आ गया, ठीक है। लेटर ई लिख रहा हूँ, ये होता है सेगमेंटेशन, सेगमेंटेड हैंडराइटिंग। सेगमेंटेशन कभी भी अच्छा नहीं होता, अंडरस्टूड? ठीक है। एनीवे, बहुत ज्यादा मैंने बता दिया आपको, बहुत कुछ। 8 बज गया, सो बहुत एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ मैं आपसे, वेरी सॉरी। शम्प्रीति मैम, आप थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म कर दीजिए हम लोगों को। थैंक यू। Just the concluding part and the criticism what was done. So that's it. I will not take much of a time. Yes, yes. So we can conclude by saying two important things. Sternberg's triarchic theory affirms that there should be a functional or a practical balance between A, C, P. So we can always remember ACP, that is our analytical, creative and practical abilities in order to achieve success within socio-cultural contexts. And the second core point, as per Sternberg's theory, is that in order to be successful in life, one must make use of his ACP strengths. That is, one should understand his strengths, capitalize his strengths, and compensate with his weakness in all of these three areas. So that is the core part which Sternberg had said. So just the criticism part, जबकि स्टर्नबर्ग को ट्रायआर्किक थ्योरी को काफी अप्रिशिएट किया गया, पर उन्होंने कुछ साइकोलॉजिस्ट ने क्रिटिसाइज भी किया है, लाइक लिंडा गॉटफ्रेडसन का ये कहना है कि ये थ्योरी एम्पिरिकल बेस्ड नहीं है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड नहीं है, इसका कोई अच्छा डेटा अवेलेबल नहीं है। And thus criticized by saying the major difficulty in Sternberg's theory is that it can't be translated to psychometric tests for measuring or cognitive abilities. So that is mainly about Sternberg's triarchic theory. ओके, थैंक यू शम्प्रीति मैम, आपने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया सबको, बहुत हेल्प किया आपने मुझे आज। थैंक यू सो मच एंड आई एम सो हैप्पी दैट आपने आया है, बात किया हम सब लोगों से। यू आर ए वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट। ओके, और किसी का भी कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिए। मैं, क्योंकि आज तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ अपना सेशन। एंड थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट संडे फिर से आऊँगा, और नेक्स्ट संडे अगर स्किप हो जाए तो नेक्स्ट संडे 15 डेज बाद तो 100% आऊँगा मैं दूसरे साइकोलॉजिकल कुछ टॉपिक के लेके। एंड आप मुझे अगर एडवाइस दो कि मैं नॉर्मली ग्राफोलॉजिकल टॉपिक के ऊपर करूँ या साइकोलॉजी के ऊपर ज्यादा अफेक्ट करके हैंडराइटिंग को जैसे हम कंक्लूड एक साथ करो तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम अप्लाई कर सकेंगे। तो ये आप मुझे एडवाइस दे देना ऑब्वियसली। कमाल, मैं कुछ बोल सकती हूँ? श्योर मैम, श्योर। ओके, थैंक यू फॉर अलाउइंग मी। जैसे कि संप्रति मैम ने कहा कि सिलेक्शन, शेपिंग एंड अडेप्टेशन जो 3 हमें कंसेप्ट दिए थे उन्होंने, तो हमें आई एम नॉट फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड, आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो मुझे ये सब कुछ पता ही नहीं था कि साइकोलॉजी किस तरह काम करता है एंड व्हाट कंसेप्ट्स आर द फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड ऑल। बट मैंने जब ग्राफोलॉजी किया तब मुझे ये समझ में आया कि ग्राफोलॉजी can be a direct and accurate tool to understand all these technical words of adaptation, shaping and selection and all. Just by looking at the handwriting sample, if you are well experienced, you can understand all these words without knowing them,
even without going through the psychology part of it, you can understand the writer's mindset. For example, जो इन्होंने कहा था संप्रति जी ने सिलेक्शन, तो सिलेक्शन किसी का हमें कैसे पता चले थ्रू हिज और हर हैंडराइटिंग. तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं जो हमें डायरेक्ट समझा देंगे उसके राइटिंग देखकर, विदाउट इवन कन्वर्सिंग विथ हिम कि आपको क्या, आपके मन में क्या चल रहा है, कुछ नहीं. हमने सिर्फ राइटिंग का सैंपल लिया और हमने ये बातें हमें वहां से जान पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, if the writer has a retraced writing or a narrow left margin or signature close to left margin, or a girl who does not change her signature after marriage, or straight slant people, or heavy pressure, if you can combine all these traits, you will understand the person is not easily adaptable. He does not have the adaptive mind. So he will stick to his own ideas without concerning the practical situation. तो ये जो साइड है, हम ये कॉम्बिनेशन अगर हम कर लेते हैं, इतनी चीजें अगर हमें दिख जाती है राइटिंग में, तो हम समझ सकते हैं कि ये जो बंदा है वो अपनी बात को पकड़े रखेगा, वो नए चेंजेस ओपन, ही इज नॉट ओपन टू न्यू आइडियाज और न्यू कंसेप्ट इन लाइफ. तो वी कैन सी, एंड देन इफ साइकोलॉजी बैकग्राउंड इज देयर, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट भी है और साथ में ग्राफोलॉजी कर रहा है, क्योंकि मुझे ये एक बहुत अच्छे मौके बहुत बार मिले हैं कि मैंने बहुत से आर्ट स्टूडेंट्स जिन्होंने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है या किसी ने पीएचडी इन चाइल्ड साइकोलॉजी की है, उन सबको भी ग्राफोलॉजी सिखाने का मुझे मौका मिला है. और अब मैंने देखा है कि उन्होंने ग्राफोलॉजी को एज ए सपोर्टिव टूल अपने क्लाइंट्स के साथ यूज करना शुरू किया है, एंड दे आर गेटिंग बेटर रिजल्ट्स. Why? Because many times we do not interact with the client. Many things are hidden, जो वो बता नहीं पाते clearly, openly to the psychologist या psychiatrist. तो वो बातें अगर हम उनका सैंपल ले लेते हैं और उसके साथ अगर साइकोलॉजी कंबाइन हो जाता है, तो ये कितना ही अच्छा रिजल्ट देगा, ये आप समझ सकते हो कि जो मैंने बताए उतने पॉइंट से अगर हमें उसकी अडेप्टेबिलिटी पता चलती है, तो हमें उसके साथ ज्यादा कन्वर्स करने की इस पॉइंट के ऊपर नहीं है, जरूरत नहीं है, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है. तो ये अगर हम सब समझे कि हाउ ग्राफोलॉजी एंड साइकोलॉजी कैन गो हैंड इन हैंड, so it will be like a miracle. We can solve many psychological problems without condemning that person, without making him or her degraded or feeling कि अरे तुम ऐसा सोचती हो, अरे तुम ऐसा करती हो. नहीं, हर एक के कुछ प्लस माइनस है, उसे हमें सबसे पहले समझ लेना है उसके राइटिंग से, तो ये बहुत आसान हो जाता है. Thank you for allowing me, Tamal. Thank you. I hope Thank you. like okay. Thank you, ma'am, for your help, kind help. Thank you. So thank you all. So आप सबने बहुत हेल्प किया, बहुत देर तक अपने रहा, 1 घंटे का था, 1.5 घंटा हो रहा है. Thank you so much. And Thank you, everybody. Thank you for the wonderful sessions, both of you. Thank you, Sampriti ji. Thank you, Tamal. Thank you, ma'am. thank you all of you. Thank you, everyone. मिलते हैं next day.